मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन है। And today's message is envy to elevation. ईर्ष्या से ऊंचाई. और आज का जो संदेश है वो है ईर्ष्या से ऊंचाई. Okay, or jealousy to joyfulness. और या तो जलन से आनंदता के ऊपर. Okay, so we just read from the book of Acts chapter 7 verses 8 to 12. और अभी हमने पेतरू की काम 7वां अध्याय उसका 8 वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़ा है. But we will read again chapter 7 verses 9 and 10. और लेकिन अभी हम दोबारा से 7वें अध्याय का 9 और 10 वचन दोबारा पढ़ेंगे. It says like this, that the patriarchs becoming envious sold Joseph into Egypt, but God was with him and delivered him out of all his troubles and gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his house. कुलपतियों ने यूसुफ से ढहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ भेजा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया. Amen. So may God speak to every one of us this evening. और हो कि परमेश्वर आज शाम हम सब से बातें करें. Before we enter the message, I want to just ask you 3 questions. और इससे पहले के संदेश में मैं जाऊं, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूं. The first question is, what is the longest sermon in the book of Acts? और सबसे पहला प्रश्न ये है कि पेतरू के काम में सबसे लंबा संदेश कौन सा है? Yes, Stephanos, because we read from Acts 7, so it must be something like that, connected to that. So, the Stephen's message was the longest message, that is 52 verses. It starts from 7th chapter verse 2 to verse 53. और देखिए स्टीफनुस का प्रचार जो है वो सबसे लंबा प्रचार है. वो 7वें अध्याय के दूसरे वचन से लेकर 53 वचन तक वहां चलता है. And we know there are many sermons in the book of Acts. और हम इस बात को भी जानते हैं कि पेतरू के काम के अंदर में और भी दूसरे संदेश छुपे हैं. Okay, the second question is, what is the longest sermon in the New Testament? और दूसरा प्रश्न ये है कि नए नियम के अंदर में सबसे लंबा प्रचार कौन सा है? The longest sermon in the New Testament. नए नियम के अंदर सबसे लंबा प्रचार. Everyone knows. और सब जानते हैं. Yes, Sermon on the Mount. और जो पहाड़ी उपदेश है, That is 107 verses. और 107 वचन उसमें आते हैं. Let me see the third question. और हो के तीसरा प्रश्न हम देखें. What is the longest sermon in the book of in the Old Testament? और पुराने नियम में सबसे लंबा संदेश कौन सा है? But I told the book, but then anyone wants to guess? Huh? What's that? No, it is bigger than 119 song. और वो 119 वचन से भी बड़ा संदेश है. No, that will be lesser than 176 verses of 119 song. Okay, just for your information, you know, the book of Deuteronomy is actually 3 sermons. और आप जानते हैं व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है वो 3 संदेश है. And the longest sermon in the entire Bible is chapter 5:1 of Deuteronomy to 26th chapter verse 19. और देखिए सबसे लंबा संदेश जो है व्यवस्था विवरण उसके 5वें अध्याय 1 वचन से आरंभ होकर वो 26 अध्याय तक जाता है. Yes, 22 chapters the sermon, one sermon of Moses. और देखिए मूसा का एक संदेश जिसके अंदर 22 अध्याय आते हैं. Okay, first chapter verse 6 to 4th chapter verse 40 was the first sermon. और उसका पहला अध्याय के 6ठे वचन से लेकर 4थे अध्याय तक जो है वो पहला संदेश मूसा का. And the second message is the longest sermon, that is 5th chapter verse 1
to 26th chapter 19th verse. और दूसरा संदेश मूसा का जो 5वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक सबसे लंबा संदेश जो पुराने नियम में पाया जाता है। Okay, so before again another thing is usually when we talk about patriarchs, we always think about Abraham, Isaac and Jacob. और देखिए जब हम कुलपतियों के बारे में बात करते हैं तो अक्सर अब्राहम, याकूब, इसहाक का नाम हमारे मन में आता But है। here when Stephen was preaching, he says the 12 sons of Jacob also as patriarchs. और लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि स्तिफनुस जब प्रचार करता है तो वो इस बात को कहता है कि याकूब के जो 12 बेटे हैं वो भी कुलपति के रूप में देखे गए। And we read about Joseph here. और हम यहाँ यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। Okay, you know how many Josephs are there in the Bible? और आप जानते हैं बाइबल के अंदर कितने यूसुफ पाए जाते हैं? There are 5 Josephs in the Old Testament. और पुराने नियम में 5 यूसुफ थे। And in the New Testament there are 7 Josephs. और नए नियम के अंदर में 7 यूसुफ हैं। Okay, you can search for yourself. और आप अपने लिए खोज लीजिएगा। Okay, so now we will go to the message. We will read again the 9th verse, the first part. और देखिए अभी हम दोबारा संदेश में चलते हैं और 9वें वचन का पहला भाग हम पढ़ते हैं। And the patriarchs, becoming envious, sold Joseph into Egypt. कुलपतियों ने यूसुफ से ढहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा। So today's message is envy to elevation. और आज का संदेश जो है ढहा और ऊंचा उठाया जाना। We read here that the 11 brothers of Joseph, and not 11, maybe 10 brothers of Joseph, they envied Joseph. और हम इस बात को कह सकते हैं कि यूसुफ के 10 भाई यूसुफ से ढहा करते थे। Today you also maybe in your job, workplace, or maybe in business, maybe even in different things, so people envy you. और हो सकता है कि आज आप भी अपने व्यापार में, अपने कार्यालय में, अपनी नौकरी के स्थान पर होंगे जहां लोग आपसे ढहा रखते होंगे। We also are envious about others. और हम भी कई लोगों के प्रति अपने मन में ढा रखते हैं। Because when we see others getting better marks than ours, then we feel envious of those students. और क्योंकि कई बार जब हम छात्र के रूप में दूसरे छात्र को अच्छे अंक प्राप्त करते हुए देखते हैं तो उस छात्र के प्रति मन में ढहा आ जाता If है। you feel somebody is promoted instead of you, then you feel envious of that person. और जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में किसी और की पदोन्नति हो गई है तो आप उस व्यक्ति के प्रति मन में ढहा रखते हैं। But many times we don't feel that envy is a sin. और कई बार हम इस बात को नहीं सोचते कि जो ढहा है वो पाप है। We feel that envy is just natural. और हम इस प्रकार सोचते हैं कि ढहा मन में आना ये स्वाभाविक है। Maybe I will just give you 3 verses. We will read. First verse is Job chapter 5 and verse 2. और अय्यूब उसका 5 अध्याय उसका 2रा वचन। For wrath kills the foolish man, and envy slays a simple one. क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। So envy will slay us. और जो ढा है वो हमें खत्म कर देगा। Okay, it is harmful for us who envy others. और ये हमारे लिए नुकसानदायक है जो दूसरों के प्रति मन में ढा रखते हैं। Proverbs chapter 14 and verse 30 says, और नीति वचन 14 उसका 2 कहता है और 30वां पद कहता the है। latter part says, but envy is rottenness to the bones. और उसका अंतिम पद इस प्रकार कहता है मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। We have to understand envy is harmful for us. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ढा करना हमारे लिए नुकसानदायक है। And Proverbs chapter 27 and verse 4. और 27 अध्याय इसका 4था वचन कहता The है। latter part says, but who is able to stand before jealousy? और उसका आखिरी भाग इस प्रकार कहता है जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। Okay, so today I want to share with you how the brothers of Joseph
envied him. और आज मैं बांटना चाहता हूँ कि किस प्रकार यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के प्रति मन में ढा रखा। And I also want to tell you, usually in the world there is envy. और ये भी बात कहना चाहता हूँ कि संसार के अंदर ये स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर ढा हो। But when you are a believer, और लेकिन आप एक विश्वासी हैं, apart from human beings envying you, और जो मानवीय तौर पर जो आपके अंदर मानवीय लोग आपके अंदर ढा करते हैं, but also there is Satan who is envious of you. और उसके साथ साथ मनुष्य के साथ शैतान भी है जो आपके प्रति ढा रखता है। Means you are envied by Satan and also by human beings. और इसका अर्थ ये है कि शैतान भी आपके प्रति ढा रखता है और मनुष्य भी आपके प्रति ढा रखते हैं। Why did the brothers of Joseph envy him? और क्यों यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के प्रति ढा मन में रखा? We can see three reasons. और हम वहाँ 3 कारण देख सकते हैं। And the first reason is when you read the 37th chapter of Genesis. और उत्पत्ति 37 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, In the 3rd verse. और उसके 3रे वचन में, Now Israel, that means Jacob, loved Joseph more than all his children. और यहाँ लिखा है इस्राएल यानी कि याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। Why the 10 brothers envied Joseph? और क्यों 10 भाई यूसुफ के प्रति ढा रखते थे? Because the father Jacob loved Joseph than all his brothers. और क्योंकि जो पिता याकूब है उसने यूसुफ को बाकी 10 भाइयों से अधिक प्रेम रखा। Satan envies you because of the heavenly Father's love upon you and me. और शैतान आपसे ढा रखता है क्योंकि स्वर्गीय पिता आपके और मेरे प्रति प्रेम रखता है। And then the second reason is, और दूसरा कारण जो है, again 3rd verse, और उसके 3रे वचन में लिखा है, and he made him a coat of many colors. और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। So the father made a beautiful coat for Joseph and not for other brothers. और उसके पिता ने यूसुफ के लिए एक बड़ा सुंदर रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, बाकी 10 के लिए नहीं बनवाया। We can say because he was given the first born privilege. और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उसको पहलोठे पुत्र का सौभाग्य प्रदान हुआ। So we know he had double fold portion of blessings. और इसका अर्थ है कि उसके पास में हर आशीष का दुगना भाग मिलता है। And then the third thing is when you go home and read verses 4 to 10 or 4 to 11 of 37th chapter. और 37 अध्याय के 4 से लेकर 11 तक आप घर जाकर पढ़िएगा जो तीसरा कारण है। We read about 2 dreams that God gave to Joseph. और हम वहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर के द्वारा 2 स्वप्न हैं जो यूसुफ को दिए गए। So today Satan is envious of you and me because of the Father's love. और आज शैतान आपको और मेरे प्रति मन में ढा इसलिए रखता है परमेश्वर के प्रेम के कारण। And also Satan is envious about us because we have the garment of salvation, we have the garment of praise, we have the garment of joyfulness. और शैतान हमसे इस बात के प्रति भी डर रखता है क्योंकि हमारे ऊपर में उद्धार का वस्त्र है, आनंद का वस्त्र है और स्तुति का वस्त्र है। And Satan is envious of us because of the ministries that God has given you and me. और शैतान हमें हमारे ऊपर इस बात के लिए भी डर रखता है कि वो सेवकाई जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में सुपुर्द की है। The world, the people envy us because of our development, our progress and our promotions. और संसारिक लोग तो हमारी बढ़ोतरी के कारण हमारी वृद्धि के कारण हमसे ढार रखते हैं। We know when we read the 30th chapter of Genesis verse 1, we read that Rachel was envious of Leah. और देखिए जब हम 30 अध्याय का पहला वचन इस पर पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि रेचल जो है वो अपनी बहन के कारण अपने मन में ढार रखने लगी। Because Rachel was not able to conceive and Leah already given many sons. और राहेल के तो बच्चे हो रहे थे, बहुत बच्चों को जन्म दे रहे थे, लेकिन
नहीं दे पा रही थी। Genesis 26:14 says, और 26:14 कहता है, there Isaac had great possessions, though so the people envied him. और इसहाक के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई, जिसके कारण लोग उससे ढा करने लगे। Even we know, if you read in the book of Acts, because many Jews were getting saved through the ministries of Paul, Bible says that the Jews envied Paul. और देखिए, हम ये प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, पौल की सेवकाई के द्वारा बहुत सारे यहूदी उद्धार पाने लगे, जिसके कारण यहूदी पौलुस से ढहा करने लगे। Okay, another question: who is the first person to envy? और एक और प्रश्न पूछता हूं, कौन सा व्यक्ति था सबसे पहला व्यक्ति जिसने ढहा रखा? Before Cain. और केन से भी पहले Satan. और शैतान। Satan envied God. और शैतान ने परमेश्वर के प्रति मन में ढहा रखा। That's why he wanted to grow bigger than God. और यही कारण था कि वो परमेश्वर से बड़ा और उससे ऊंचा होना चाहता था। After that, Satan envied Adam and Eve. और देखिए, उसके पश्चात शैतान आदम और हव्वा से ढहा रखने लगा। Because Adam and Eve were in the beautiful Garden of Eden. और क्योंकि आदम और हव्वा तो सुंदर अदन की वाटिका में थे। They were having very close relationship with God. और क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में बहुत घनिष्ठ और Adam नजदीक and था। Eve had no problems. और आदम और हव्वा के पास कोई समस्या नहीं था, No sickness. और कोई रोग नहीं था, Nothing that was sinful in their lives. और ऐसा कुछ उनके जीवन में नहीं जो पाप से भरा हो। So Satan envied that और इसीलिए शैतान उनके प्रति मन में ढा रखता and came into the Garden of Eden और यदन की वाटिका में प्रवेश किया and he made Adam and Eve to disobey God. और उसने आदम और हव्वा को परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में अगुवाई किया, So that he will lose the blessings of God. और ताकि वे लोग परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाएं। Maybe today you are in a situation, और हो सकता है कि आज आप ऐसी परिस्थिति में हो, maybe in your office or even in your neighborhood or maybe among your friend circles, even in your own families. और हो सकता है कि आपके कार्यालय में, आपके पड़ोसी, आपके परिवार के अंदर में आप ऐसी परिस्थिति में हो That people are envying you. और लोग आपके प्रति ढहा रखते हो। And I want to tell you, don't worry because of that. और मैं आपसे कहता हूँ, उन सारी बातों के वजह से चिंता ना करिए। God can elevate you from this envious position to great position. परमेश्वर आपको इस ढा के स्थान से उठाकर एक ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। Satan is envious because you have the garment of salvation upon you. और देखिए, शैतान आपसे ढा इसीलिए करता है क्योंकि आपके ऊपर में उद्धार का वस्त्र आप पहने हुए हैं। Satan is envious of you because you have the garment of praise. और शैतान आपसे ढा इस वजह से रखता है क्योंकि आपने उसकी स्तुति आराधना का वस्त्र धारण कर रखा है। He lost that garment. और उसने उस वस्त्र को खो दिया है। Because God created Lucifer to worship God. और क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर की रचना इसलिए की थी कि वो परमेश्वर की आराधना But करे, he lost that. लेकिन उसने अपने हाथों से खो दिया। So he became Satan. और यही कारण है कि वो शैतान बन गया। And Satan is envious because you have the vision from God, a ministry from God. और शैतान यही कारण है कि आपसे ढा रखता है क्योंकि आपके पास परमेश्वर से दर्शन है, आपके पास परमेश्वर से पाई हुई सेवकाई है। And so you study about Joseph. और आप यूसुफ के बारे में अध्ययन करें। Today I will just share with you some of the things from the life of Joseph. और यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को आज मैंने आपसे बांट रहा हूं। There are at least 120 comparisons between Joseph and Jesus. और देखिए 120 तुलनात्मक वचन है यूसुफ और यीशु के मध्य में। Okay, so go and
and study those things. और आप घर जाकर उन सारी बातों के बारे में अध्ययन करें। So now we go to the next part of the message. और संदेश के अगले भाग में हम चलते हैं। These patriarchs was very envious of Joseph and they sold him into Egypt. और जो कुलपति है वो यूसुफ के प्रति मन में ढाल रखते थे, जिसके कारण उन्होंने यूसुफ को मिस्र में बेच दिया। And we know, as we just read in the beginning, envy, who can stand before envy? और हमने अभी वचन से पढ़ा है कि ढाल के सामने कौन टिक सकता है। You know, his own brothers wanted to kill him. और उसके खुद के भाई उसे उसकी हत्या करना चाहते थे। But then Reuben intervened and said, no, let us not kill our brother. लेकिन रूबेन ने वहां मध्यस्थता किया और कहा कि हो कि हम अपने भाई का लहू ना बहाएं। So they threw him into the pit. और उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया। He had a plan to take him out and send him to the father. और उसकी योजना थी कि वो उसे बाद में निकाल कर पिता के पास पहुंचा देगा। Can you think any of your brothers doing this for you? और क्या आप सोच सकते हैं कि आपका एक कोई भाई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है? Any of your brothers, sisters doing this for you? और आप में से किसी के कोई भाई और बहन इस प्रकार से आपके लिए करें? The Joseph's brothers did that. और यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ किया। Then we know Judah says, oh, the Ishmaelites are coming, let us sell him to them. और हम जानते हैं कि यहूदा ने कहा कि इश्माएली व्यापारी आ रहे हैं, आओ उनके हाथ में इसको बेच देते हैं। And we know they sold him for 20 pieces of silver. और हम इस बात को जानते पड़ते हैं कि 20 चांदी के टुकड़ों के लिए यूसुफ को बेच दिया गया। Can you imagine your brother or sister selling you like that? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके भाई बहन आपको इस प्रकार बेच रहे हैं? Today in the ministries it is happening. और सेवकाई में ऐसा हो रहा है। People are envious about the ministries. और लोग जो है सेवक और सेवकाई के प्रति मनों में ढाल रखते हैं। And I have a beautiful illustration, but the time is up, so I will not share. Okay, I will not share. Okay, so then we know that because they were envious of these three things, और इन तीन बातों के कारण उसके प्रति मन में डहा था। father's love, और पिता का प्रेम। but they cannot take away the father's love towards Joseph. और लेकिन वो यूसुफ के प्रति पिता के प्रेम को उससे दूर नहीं कर सकते थे। But they were envious of him because of the multicolored coat. और देखिए वो उससे ढा रखते थे क्योंकि उसके पास में वो रंग बिरंगा अंगरखा था। You know what they did? आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? As soon as Joseph reached them, और जैसे ही यूसुफ उनके पास पहुंचा, what did they do? और उन्होंने क्या किया? They stripped him of that coat और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को फाड़ दिया because of the jealousy that they had regarding their brother. क्योंकि उनके भाई के प्रति मन के अंदर जो ढा है उसके कारण। And you know, you go home and read in the 37th chapter when Joseph, they saw him far off. और देखिए 37वें अध्याय को जरूर घर जाकर पढ़िएगा। जब यूसुफ ने दूर से उन्हें देख लिया, Now when the brothers saw Joseph in a distance, और जब भाइयों ने यूसुफ को दूर से आते हुए देख लिया, you know what they said? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? The dreamer is coming. और देखो स्वप्नदर्शी आ रहा They है। were envious of his visions or dreams. और वो उसके स्वप्न और दर्शन के प्रति ढाल रखते थे। And then they continue to say, let us see what will happen to his dreams. और वो आगे इस प्रकार कहते हैं, आओ देखें उसके स्वप्न का क्या होगा। Okay, because they are envious about his dream. और क्योंकि वो उसके स्वप्न के प्रति मन में ढाल रखते हैं। Satan is envious of your vision or dream or ministries. और शैतान आपके स्वप्न दर्शन और सेवकाई के प्रति अपने अंदर में ढाल रखता है। That's why you face problems और in your ministries. यही कारण है कि आप सेवकाई के अंदर में आप मुश्किलों का सामना करते हैं। Dr. Prashant was sharing, they had a Bible study. Satan is envious, so he will not allow such things to happen. और जैसे डॉक्टर प्रशांत कह रहे थे कि वो बाइबल अध्ययन को चलाते हैं, शैतान घृणा करता है, डहा रखता है, इसीलिए वो वहां चलने की अनुमति नहीं देगा। Okay, I want to share with you 4 blessings that God gave to Joseph. और देखिए 4 आशीषें जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया, मैं उनको साझा करना चाहता हूँ। The 9th verse of 7th chapter of Acts. और देखिए 7:9, yeah.
और प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 9 वचन। The brothers or the patriarchs were envious and they sold Joseph to the Ishmaelites. और जो कुलपति है, जो यूसुफ के भाई है, वो डहा करने के कारण मिस्र रहने वाले लोगों के हाथ से बेच रहे हैं। But then what did God do? और लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? The Bible says God was with him. और लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था। Maybe you are envied by your friends and your colleagues and your family members. और हो सकता है कि आपके परिवार के लोग, संगी, साथी, अड़ोसी, पड़ोसी आपसे ढाल रखते होंगे। Maybe because of that, Satan is envious of you. और हो सकता है कि उसके कारण शैतान आपके प्रति मन में ढाल रखता होगा। I want to tell you today, और लेकिन आज मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ, whatever problems you are going through, और चाहे कोई भी समस्या से आप क्यों ना गुजर रहे हो, because of the envy that people have against you, और क्योंकि लोगों के मन में आपके प्रति जो ढा और जिससे आप गुजर रहे हैं, because of the envy that Satan is having against you, और उस ढा के कारण जो शैतान ने आपके विरुद्ध अपने अंदर रखा है, the first blessing is God is with you. और सबसे पहली आशीष ये है कि परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। God was with Joseph. और परमेश्वर यूसुफ के साथ था। We know he was sold for 20 pieces of silver. और हम इस बात को जानते हैं कि 20 चांदी के टुकड़ों में उसे बेच दिया And the गया। Ishmaelites sold him, resold him. और देखिए इश्माएलियों ने उसको एक बार फिर से बेच दिया। You know, second-hand vehicles don't have much value in और हम India. यहाँ जानते हैं कि भारत के अंदर में दूसरे पुराने गाड़ियों की ज्यादा कीमत नहीं होता है। Here Joseph was sold second-hand. और देखिए यूसुफ को तो दोबारा से बेचा गया। You go home and read 39th chapter. और घर जाके 39वां अध्याय पढ़िएगा। And there it says, the Lord was with Joseph. और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। And he was a successful man in the second verse. और दूसरे वचन में लिखा है वो एक सफल जन था। And if you continue to read, even Potiphar who bought him says, I know that God is with him. I'm able to see that God is with him. और देखिए जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा, पोतीफर इस बात को कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा उसके संग है। God, I want to tell you, people will be able to know that God is with you. और देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग इस बात को जान पाएंगे, कह पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ में है। Hallelujah. Hallelujah. God is with you. और परमेश्वर आपके संग है। And we know he was falsely accused. और हम इस बात को जानते हैं जब उस पर झूठा दोष लगाया गया। And he was put in prison. और उसको जेल खाने में डाल दिया। If you read the 21st verse, और आप 21वां वचन पढ़े, the Lord was with him in the prison. और जेल खाने में परमेश्वर उसके साथ था। And we know Jesus says, behold, I am with you all the days until the end of this age. और देखिए यीशु मसीह ने वादा किया कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। Okay, Joseph could have thought, God has forgotten me. और यूसुफ इस प्रकार सोच सकता था कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। But the Bible says in Isaiah chapter 44 and verse 21, और यशायाह 44 उसके 21 में बाइबल इस प्रकार कहता है, you shall not be forgotten of me. और God says, yeah. और तू मेरे द्वारा भुलाया नहीं जाएगा। And we know the very famous verse in 49:15 of Isaiah. और देखिए 39 के 15 में सबसे प्रसिद्ध वचन लिखा है, Can a mother forget a suckling child? Even if she forgets, I will not forget you. और एक माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। And we know that very famous song in Hindi, जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने कहा, संसार के अंत तक सदा साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। When I thought I am alone, then Jesus told me, I will be with you until the end of this age. और जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, तब यीशु ने कहा, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ हूँ। And I want you all to claim this promise in Zechariah 8:23. और मैं चाहता हूँ कि जकरिया 8 उसका 23 जो वायदा है, हम सब उसको अपने लिए घोषणा करें। Thus says the Lord of hosts, in those
from every language of the nations shall grasp the sleeve of a Jewish man. Today we are not Jewish, we are God's people, Christians, saying, let us go with you, for we have heard that God is with you. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष, आज हम यहूदी नहीं है, हम सब उद्धार पाए मसीह लोग हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं मसीह पुरुष के वस्त्र के छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Amen. Hallelujah. God is with you. और परमेश्वर आपके साथ है। Let the people working with you, let your neighbors recognize that. और वो के लोग जो आपके साथ कार्यरत हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, वो इस बात को पहचानने पाए। At least 10 people come and tell you, brother, sister, we know that God is with you. We will come with you to church. और कम से कम 10 लोग आकर इस बात को कहें, भाई और बहन हम जानते हैं परमेश्वर आपके साथ है, हम आपके साथ चलेंगे। आंटी अंकल आपके साथ परमेश्वर है, we will come with you. और आंटी अंकल परमेश्वर आपके साथ है, हम आपके संग चलेंगे। I have been praying that every believer in our church will have at least 10 people coming with you to church. और देखिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे कलीसिया के हर विश्वासी के साथ में हर एक जन के साथ कम से कम 10 लोग कलीसिया में आने And the second blessing, और दूसरी आशीष the 10th verse of 7th chapter of Acts. और पेट के काम 7वां अध्याय उसका 10वां वचन, The Bible says God delivered him out of all his troubles. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसके सारे कष्टों से उसको छुटकारा दिलाया। Joseph was having troubles for almost 13 years. और यूसुफ को कम से कम 13 साल परेशानियों का सामना करना पड़ा। At least 12 to 13 years, because when he was 17 years of age, we read about that. और देखिए कम से कम 12 से 13 साल, जब वो 17 साल का था तब हम उसकी घटना के बारे में पढ़ते हैं। And we know he was sold by his brothers. और उसके भाइयों के द्वारा उसे बेच दिया गया। And he was in Potiphar's house, we don't know, maybe 1 or 2 years. और पोतीफर के घर हम नहीं जानते कितने वर्ष, लेकिन 1 या 2 वर्ष रहा होगा। Okay, maybe he was in the jail for almost 10 years. और कम से कम 10 साल वो जेल खाने में रहा। He was having problems and troubles for 13 years. और देखिए समस्याएं और मुश्किलों का सामना 13 साल उसके जीवन में रहा। I don't know how many years you are in trouble. और मैं नहीं जानता कि आप कितने सालों से समस्या में पड़े हैं। Maybe how many months you are in trouble. और पता नहीं कितने महीनों से आप समस्या में पड़े हैं। You know, for Job, the scholars say he was in trouble for almost 7 to 9 months. और देखिए बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार कहते हैं अय्यूब 7 से 9 महीने तक उस समस्या के अंदर पड़ा रहा। Moses was in the wilderness for 40 years. और मूसा मरुभूमि में 40 साल रहा। And Abraham and Sarah were without a child for 25 years. और अब्राहम और सारा बिना संतान के 25 साल यात्रा में गुजार But दिए। anyhow we know the Bible says that God delivered him from all his troubles. और देखिए बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर ने उसके सारे कलेशों से उसको छुटकारा दिया। Hallelujah. Hallelujah. Because when he was 30 years of age, he became the prime minister. और जब वो 30 साल का था तब वो प्रधानमंत्री बन गया। So God delivered him from all his troubles. और परमेश्वर ने उसके सारे कलेश से उसको छुटकारा दिया। If you read Psalms 34 and verse 17, अगर आप भजन 34 उसका 17 पढ़े, it says, the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 6th verse says, और 6वां वचन में लिखा है, the poor man cried out and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। If you read 2 Timothy chapter 4 verses 17 and 18, और दूसरा तिमोथियो 4 अध्याय उसका 17 और 18, 17th verse latter part says, and I was delivered out of the mouth of the lion. और वहाँ लिखा है अंतिम
भाग में लिखा है, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। And then it says that the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for his heavenly kingdom. और 18 में लिखा है, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। Satan is an oppressor, but God is a deliverer. और देखिए, शैतान दबाने वाला है लेकिन परमेश्वर छुड़ाने वाला है। Amen. Hallelujah. God will deliver you from all your troubles, even on this day. और देखिए, परमेश्वर आपके सारे कलेशों से आज के दिन भी आपको छुड़ाएगा। If you read Acts chapter 7 verse 34, और यदि आप 7 उसके 34 में के काम को I have पढ़ेंगे, surely seen the oppression of my people who are in Egypt. I have heard their groaning and I have come down to deliver them. मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसीलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। Amen. So God has come down because he heard your cries, your groanings, and he has come down to deliver you. और देखिए, परमेश्वर नीचे उतर आया है क्योंकि उसने आपकी आह को और रोने को सुना है, इसीलिए वो आपको छुटकारा देने के लिए उतर आया है। What are your troubles today? और आज आपकी कौन सी समस्या या कलेश है? God will deliver you from all those things. परमेश्वर आपको उन सब से छुड़ाएगा। God delivered Shadrach, Meshach, Abednego from the fiery furnace. परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदnego को उस जलते हुए भट्टे से छुड़ाया। Daniel from the den of lions. और दानियल को भूखे शेरों की मांद में छुड़ाया। You know, there is no possibility or probability that Joseph's dreams could ever be fulfilled. और देखिए, वहाँ पे ऐसी कोई संभावनाएं बिल्कुल नहीं थी कि यूसुफ के स्वप्न कभी पूरे हो पाते। So today your deliverance is impossible, improbable. और आज आपका छुटकारा हो सकता है, असंभव होगा। Okay, so you may be having sickness, और आपके पास कोई रोग या बीमारी होगी, family problem, और पारिवारिक समस्या होगा, problem in your job, और आपके नौकरी में, finances, और पैसे के क्षेत्र में, domestic violence, और घर में लड़ाई झगड़ा होगा, and ministerial problems. और सेवकाई के अंदर समस्याएं होगी। I want to tell you, God will deliver you from every one of your problems. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम में से हर एक की समस्याओं से परमेश्वर छुड़ाएगा। And the third blessing is, और तीसरी आशीष है, again in the 10th verse of the 7th chapter of Acts, और प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, God gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh. और राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। It does not just say he had wisdom in the presence of Pharaoh. और देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि राजा फिरौन की नजर में उसने केवल बुद्धि प्रदान की, But the first word is favor. और लेकिन पहला शब्द है अनुग्रह। Today we have wisdom. और आज हमारे पास बुद्धि तो है, Okay, but people know that we have wisdom. और लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, But we have to receive the favor. और हमें तो परमेश्वर के अनुग्रह को पाने की आवश्यकता है। And I want to tell you, you go home and read, the Bible says that the Hebrews or the Israelites are an abomination to the Egyptians. और देखिए, आप घर जाकर बाइबल में पढ़िएगा, बाइबल इस प्रकार कहता है, यहूदी लोग जो है इस्राएलियों के लिए बड़े घृणित थे, और मिस्रियों के लिए घृणित थे। Okay? So you can read it you can go home and read it. It's in the 43rd chapter verse 32. और 43 अध्याय उसके 32वें वचन में उत्पत्ति में लिखा है। Who was Joseph? और यूसुफ कौन है? Joseph was a Hebrew man. और यूसुफ जो है वो यहूदी है। The butler said, there is a Hebrew man in the prison. और देखिए, वो पकानेहार ने कहा कि जेल खाने में एक यहूदी पुरुष है। So the Pharaoh could very well reply. और वहाँ फिरौन जो है बहुत अच्छे से उत्तर देता है, दे सकता था, और दे सकता I था, have so many magicians, और मेरे पास में बहुत सारे जादूगर हैं, all Egyptians, और सारे मिस्री हैं, they are not able to answer. और वो उत्तर नहीं दे पा रहे। What that boy in the prison can say. और वो लड़का जो जेल में है वो क्या जवाब देगा? He could not save himself from going to jail. और देखिए, वो अपने आप को जेल जाने से नहीं बचा पाया, What can he answer me? और वो मुझे क्या उत्तर देगा? But Pharaoh never told
प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया। Pharaoh says, call Joseph at once. और फिरौन ने कहा तुरंत यूसुफ को बुलाया जाए। He received favor in the sight of Pharaoh. और उसने फिरौन के सामने अनुग्रह प्राप्त किया। Today you and I need favor in the sight of the people who are against us or who are above us. और देखिए आज हमें भी अनुग्रह की आवश्यकता उन लोगों के सामने जो हमारे विरुद्ध है या हमसे बढ़कर है। Okay, so what you need first is favor. और पहले हमें क्या आवश्यकता है, उसको पहले अनुग्रह प्राप्त हुआ। Then we need the wisdom. और उसके बाद हमें बुद्धि की आवश्यकता है। Because Joseph had favor, received favor in the sight of Pharaoh, he was called to come to Pharaoh. और देखिए फिरौन की दृष्टि में उसने अनुग्रह पाया, यही कारण है कि फिरौन के द्वारा उसे बुलाया गया। And then Pharaoh shared the dreams with Joseph. और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिरौन ने अपने स्वप्न को यूसुफ के सामने रखा। I want to share one more thing in that. If you read Ecclesiastes chapter 9, verses 14 to 16. और सहोपदेशक 9 अध्याय उसका 14 से 16 आप पढ़ेंगे It तो says there was a little city with few men in it, and a great king came against it, besieged it, and built great snares around it. Now there was found in it a poor wise man, and he, by his wisdom, delivered the city. Yet no one remembered that same poor man. Then he said, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चाबंदी कर दी, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो अभी किसी ने उस दरिद्र पुरुष को स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। So here we read about a poor man, he had wisdom. और यहाँ हम पढ़ते हैं एक दरिद्र था जिसके पास बुद्धि थी And because of that he could deliver his city. और जिसके कारण उसने अपने शहर को बचा पाया। But he did not have the favor of people. और लेकिन उसके ऊपर में लोगों का अनुग्रह नहीं था। But here Pharaoh had favor upon Joseph. और लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं कि फिरौन का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था। And then when Pharaoh shared about his dreams, और जब फिरौन ने अपने स्वप्न को साझा किया Joseph interpreted the dream. और यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बतलाया। Not only he interpreted, but he also gave a solution or overcome the problem. और उसने केवल स्वप्न का अर्थ ही नहीं बताया, उसने हल भी बताया किस प्रकार हम समस्या पे जय प्राप्त कर सकते हैं। I don't know from which university Joseph got MBA. और मुझे नहीं मालूम कौन से विश्वविद्यालय से उसने MBA पास किया था। Hallelujah. हालेलुया। Not from Stanford or not from Howard, but he got MBA from God. और उसने ना तो हार्वर्ड से किया ना स्टैनफोर्ड से किया, उसने तो परमेश्वर के द्वारा अपना MBA Hallelujah. हालेलुया। You have a MBA from God. और आपके पास परमेश्वर के द्वारा MBA There है is going to be a famine. और एक अकाल होगा And it will eat up all the bumper harvest of the harvest, bumper harvest. और वो जितनी बड़ी कटनी हुआ वो सब को वो खा जाएगा। And Joseph had the wisdom. और हम इस बात को जानते हैं कि यूसुफ के पास बुद्धि पाई गई। Bible says first what we need is favor. और सबसे पहले जो हमें आवश्यकता है वो हमें अनुग्रह चाहिए। If you read Daniel chapter 1 and verse 9. और दानियल उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन अगर आप पढ़ेंगे, Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। Amen. First he had favor. और सबसे पहले उसने कृपा को पाया। And 17 to verse 20, the same chapter you can read, then they had 10 times more wisdom than all other
others. और देखिए उसी अध्याय का 17 और 20 पढ़ेंगे तो लिखा है कि दूसरों से 10 गुना ज्यादा वे बुद्धिमान पाए गए। So God will give you favor and wisdom. When people are envious against you, God will give you the deliverance. और परमेश्वर आपको अनुग्रह और बुद्धि प्रदान करेगा जब लोग हमारे प्रति मनों में ढाल And the रखेंगे। fourth blessing in the 10th verse of 7th chapter of Acts. और प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 10वें वचन के अंदर हम चौथी आशीष को देखते The हैं। Pharaoh made him governor over Egypt and all his house. और फिरौन ने मिस्र पर और अपने सारे घर पर उसे हाकिम नियुक्त किया। Hallelujah. Hallelujah. God will lift you up to be the greatest person in the society. और परमेश्वर आपको समाज के अंदर सबसे ऊंचे पद पर खड़ा करेगा। Pharaoh gave him a new name. और फिरौन ने उसे एक नया नाम दिया। Pharaoh gave him a wife. और फिरौन ने उसे पत्नी भी दी। Pharaoh made him the second, kept him in the second highest position after himself. और फिरौन ने अपने बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर उसे नियुक्त किया। And we know that Joseph became the provider of food for the people of Egypt. और हम इस बात को जानते हैं कि यूसुफ मिस्र के लोगों को भोजन प्रदान करने वाला बन गया। And the last verse of 41st chapter says he began to the provider for the entire world. और देखिए उत्पत्ति 41 उसका अंतिम वचन कहता है कि वो पूरे संसार को भोजन प्रदान करने वाला बन गया। 57th verse. और 57 वचन कहता है All countries came to Egypt, came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine was severe in all lands. और सारे देश में अकाल बहुत ज्यादा होने के कारण हर एक जन यूसुफ के पास आकर अनाज खरीदता So था। God will make you the head. और परमेश्वर आपको सर बनाएगा। God will keep you above. और परमेश्वर आपको ऊंचे पे रखेगा। In whatever office you are working. और चाहे आप किसी भी कार्यालय में काम क्यों ना Pray, करें। Lord, make my son, make my daughter, make me the head and keep me above. और प्रार्थना करें परमेश्वर मेरे बेटा मेरी बेटी या मुझको परमेश्वर आप सर बनाए ऊंचे पे रखें। Okay, so we know people are envious of you and envious of me. और हम जानते हैं कि लोग आपके प्रति हमारे प्रति मन में डाह रखते हैं। Above them, Satan is envious of us. और उसके ऊपर शैतान हमारे प्रति डाह रखता है। So you are in troubles today. और आज आप कलेश में होंगे। But I want to tell you this evening, और आज शाम को मैं आपसे कहना मांगता हूँ God is with you. परमेश्वर आपके संग है। Amen. आमीन। And God will deliver you from all your troubles. परमेश्वर आपके सारे कष्टों से आपको छुड़ाएगा। And God will enable you to receive favor and wisdom. परमेश्वर आपको योग्य करेगा कि आप कृपा अनुग्रह और बुद्धि प्राप्त And करें। God will keep you in a very high position. परमेश्वर आपको बड़े ऊंचे स्थान पर रखेगा। Come, let us pray. और आइए हम प्रार्थना करें। We will sing this song which was sung during the time of worship. और आराधना के समय जो गीत गाया गया हम उसे गाएंगे। May God minister to us as we sing this song. और जिस प्रकार ये गीत गाया जाता है हो के परमेश्वर हमारे मध्य में कार्य करे। And be courageous today. और हो के आज हम हियावी हो जाएं। Joseph was never depressed or discouraged. और यूसुफ कभी निरुत्साहित नहीं हुआ, हताश नहीं The हुआ। Bible says the word of God was testing him all those years. और बाइबल कहती है परमेश्वर हमेशा हर समय उसको परखता रहा। God bless us also this evening. और हो के आज शाम को परमेश्वर हम सबको So आशीष that we दे। can go back home rejoicing. और हो के बड़े आनंद करते हुए हम घर से घर Having the जाएंगे। garment of gladness. हमारे ऊपर में वो हर्ष का वस्त्र धारण करके जाए। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Jesus. Let's be now prayer. Let's all pray to the Lord, receiving the word of the Father. और हो के प्रार्थना के भाव में Jesus. Amen. मेरा सूर्य हुआ है, मैं किससे डरूंगा, मेरा सूर्य हुआ है, इससे डरूंगा, मेरा जोर है। दुश्मन और
because of the envy. और परमेश्वर हो सकता है कि डाह के कारण लोग कलेशों से गुजर रहे होंगे। You know everyone's condition. परमेश्वर आप हर एक की परिस्थिति को जानते हैं। But we are thankful and grateful to you और परमेश्वर हम आपके बहुत धन्यवादी हैं because you are with us. क्योंकि आप हमारे संग हैं। And you will deliver us from all our troubles. परमेश्वर आप हमें सारे कलेश से हमें छुड़ाएंगे। And you will give us favor and wisdom. परमेश्वर आप हमें अनुग्रह और बुद्धि प्रदान And करेंगे। you will keep us in a very high position. और आप हमें एक बड़े ऊंचे स्थान पर रखेंगे। Start doing for everyone this evening. और आज शाम को आप हमें से हर एक के साथ करना शुरू कर दें। As you started on the day when you did for Joseph. परमेश्वर जिस दिन आज यूसुफ के साथ आपने करना आरंभ किया वैसे ही आप करें। Even on this day, Lord, और आज के दिन में भी bless everyone, we pray. और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को आप आशीष दें। In the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में That everyone be delivered from all their problems. और हर एक जन अपनी सारी समस्याओं से आजाद होने In पाए। whatever way Satan has affected them, attacked them due to envy. और परमेश्वर शैतान ने ढाल के कारण चाहे कैसे भी कलेश में या समस्या में उन्हें डाल रखा In the है। name of Jesus, we command all the satanic forces to leave every individual and family. और यीशु मसीह के नाम से हम शैतान को आदेश देते हैं हर एक व्यक्तिगत और परिवार को केवल छोड़ के जाने का। And Lord, we pray for your delivering power to be released upon everyone and every family. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि छुटकारे का सामर्थ हर एक व्यक्तिगत रूप से और परिवार के ऊपर में आज आजाद होने We पाए। give you the glory and the honor. परमेश्वर आप ही को आदर और महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना And मांगते everyone हैं said, और सब जोर से कहें Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you shalom and deliver you from all your troubles and give you wisdom and favor. And God keep you in a high position now and forevermore. Amen and amen. Bolo Prabhu Yeshu Masih ki